Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School, Sir Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about atoms, Dalton atomic theory, modern atomic theory, fundamental particles of an atom and discovery of electron. And the resource which I am using here is your textbook of chemistry for class 9 and 10. Review of previous lecture. In previous class, I have explained to you about writing and balancing a chemical equation. आई होप आपको जो है वो प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है और किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. Today I will start a new chapter, that is chapter number 3, atomic structure. Introduction. In the 5th century, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of a very small indivisible particles which he named atomos. Greek atomos, non-cuttable, indivisible, nowadays called atom. 5th century की बात है. एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रिटस. उसने ये बिलीव बताया कि जितना भी मैटर यूनिवर्स में मौजूद है वो बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल किसको कहते हैं, जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, उससे बना हुआ है, जिसको उसने नाम दिया था एटमोस का. बेसिकली एटमोस इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नॉन कटेबल, यानी इसको आप मज़ीद ना कट कर सकते हो ना मज़ीद डिवाइड कर सकते हो, जिसको आजकल जो है वो एटम्स कहा जाता है. Now look at the definition of atom. The atom was generally identified as the smallest particle of an element consisting of subatomic particles, the electron, proton and neutron. एटम को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है कि सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का, और इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. Dalton's atomic theory. In 1808, John Dalton, an English school teacher and chemist, suggested the fundamental ideas of atomic theory, which explains the chemical nature of matter and the existence of atoms. It is known as Dalton's atomic theory. 1808 में जॉन डाल्टन थे, वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे और केमिस्ट भी थे. उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने बताया था कुछ आइडियाज़ रिगार्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने मैटर की केमिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था और एटम की एग्जिस्टेंस को जो है वो एक्सप्लेन किया था. इस थ्योरी को नाम दिया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि ये काम जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था, तो उनके नाम पे ही इस थ्योरी का नाम रख दिया गया था, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Now look at the postulates of Dalton atomic theory. The important postulates are as following. All elements are made up of small, indivisible, indestructible particles called atom. जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है छोटे छोटे इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलके बने, जिनको हम एटम्स कहते हैं. Number 2, all atoms of a given element are identical in all respects, having same size, mass and chemical properties. अगर जो एक एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं, एक सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे. लाइक उनका साइज़ भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी. बट अगर आप एक एलिमेंट को कंपेयर करें दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा. एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स हैं वो हर लिहाज से सेम होंगे, लेकिन अगर आप एक एलिमेंट के एटम को कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, तो वो डिफरेंट होंगे. Number 3, compounds are formed when atoms of more than one element combine in a simple whole number ratio. कंपाउंड कब बनता है, जब एक एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं, एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो क्या चीज़ बना लेते हैं, कंपाउंड.
A chemical reaction is a rearrangement of atoms, but atoms themselves are not changed. अगर chemical reaction की बात की जाए तो basically chemical reaction के अंदर atoms की rearrangement हो रही होती है, atoms खुद से change नहीं हो रहे होते. This means that atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. इसका मतलब ये है कि ना तो atom बनते हैं ना ही destroy होते हैं chemical reaction के अंदर. Modern atomic theory. Dalton's atomic theory assumed that atoms of elements are indivisible and that no particles smaller than atoms existed. डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से हमें ये पता चल गया था, उसने ये जूम किया था कि जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट के वो इनडिविजिबल हैं और कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो एटम से छोटा हो. बट एज द टाइम पास्ट न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लेड टू द मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल. बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स होते गए, तो क्या हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन आई, कुछ एक्सटेंशन आया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर और ये बताया गया कि एटम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो है छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स से बनके बना हुआ है जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है और वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. डाल्टन्स व्यू दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम मास इज मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. डाल्टन का जो ये व्यू था कि जो एलिमेंट है उसका उनका मास जो है वो सेम होगा, वो भी आगे जाके मज़ीद मॉडिफाई हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. इवन दैन वी कैन से दैट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज लार्जली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और हम ये भी कह सकते हैं कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई इन द एक्सप्लेनिंग ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन चैप्टर नंबर 2. Fundamental particles of an atom. The atom was generally identified as the smallest particle of an element consisting of subatomic particles, the electrons, protons and neutrons. एटम को अब एक आइडेंटिफाई कर दिया गया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसके मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. द फर्स्ट हिंट अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल केम विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एम फैराडे. पहला जो हिंट था सब एटॉमिक पार्टिकल का वो किसके साथ आया, जब एम फैराडे, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया अलॉन्ग विद विलियम क्रोक्स एंड जे थॉमसन. Later, the second subatomic particle, the proton, was identified and isolated by Goldstein, German scientist, and Ernest Rutherford. Or at the end, an English scientist, James Chadwick, revealed the third particle, the neutron, in 1932. The structure of atom as we know it today is because of these findings. अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले भी दिखाया एटम का कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर भी जो है वो इन फाइंडिंग्स के बाद वजूद में आया था. Now let's talk about discovery of electron. The fundamental particle carrying a negative charge was discovered in 1897 by the British physicist J.J. Thomson. apparatus जो इसके लिए यूज़ किया था इसकी डिस्कवरी के लिए, द apparatus यूज़ फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई थी. डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास एग्जाम्पल नियॉन साइन और टीवी ट्यूब्स जो एग्जाम्पल है वो डिस्चार्ज ट्यूब्स की एग्जाम्पल है. कैसी होती है, ग्लास ट्यूब होती है, इसके साथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, उनको हाई वोल्टेज सोर्स और एक वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है. एक्सपेरिमेंट को अगर देखें, when the tube is evacuated and a current of high potential is passed between the electrodes, streaks of bluish light extending from negative electrode cathode towards पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. जैसी पहले क्या किया, ट्यूब को खाली कर दिया बिल्कुल, उसके बाद उसमें करंट पास करवाया हाई पोटेंशियल का, तो ब्लू कलर की स्ट्रीक्स नज़र आई ब्लू लाइट की जो कि पास हो रही थी नेगेटिव यानी कैथोड से फ्रॉम टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, दैट इज़ एनोड. नेगेटिव वाले को कैथोड कहेंगे, पॉजिटिव वाले को एनोड कहेंगे. The rays appear to travel in straight lines from the cathode to anode, cause the wall at the opposite end of the tubes glow where they strike. ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी और जब ये अपोजिट वॉल की तरफ जाती तो जब वहाँ स्ट्राइक करें तो ग्लो कर रही थी. तो दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट दीज रेज अपेयर टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज का. थॉमसन ने ये शो किया कि ये वाली जो रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, इलेक्ट्रिकल
अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये चीज़ शो कर रही है कि ये रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. रिजल्ट, द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन टू दीज यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इसको नाम ही इलेक्ट्रॉन इस वजह से दिया गया ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस. Now look at this diagram. This is the diagram of the apparatus of discovery of electron. ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक वैक्यूम पम्प है, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है. कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो रेस ट्रैवल होती हुई जा रही हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.